Hello students. So today in this video we'll discuss the balancing of equation. Okay. So today's topic is balancing of chemical equations or chemical reactions. See, chemical reactions in which oxidation and reduction occurs are balanced by two methods. One method is ion electron method and the second method is oxidation number method. So in today's video we will discuss the ion electron method. Okay, see, we are going to discuss the ion electron method for balancing the chemical equation or chemical reaction. Okay, so I will write here one reaction. Reaction is, it is MnO4 minus plus Br minus, and this gives Mn2 plus Br2. This is our chemical reaction. Okay, and we have to balance this reaction in acidic medium. Okay, so while balancing the chemical equations by ion electron method, firstly we must write the reaction in ionic form और we must write the ionic reaction. जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वेशन हमें पहले से ही आयनिक इक्वेशन दी हुई है, तो फर्स्ट स्टेप इज one should write the ionic equation. Okay, now second step में आपने क्या करना है, we will assign the oxidation number of each element above it. ठीक है, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए. जैसे यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी X प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -1. तो X will come equal to +7. Here +7. ठीक है, ऑक्सीजन नंबर यूजुअली -2 होता है. Br already given -1, Mn +2, and here Br2, its oxidation number is 0. Our second step is over. First step is write the ionic equation. Second step, assign the oxidation number of each element above it. Okay, then the third step is find the elements whose oxidation state gets changed during the reaction. वो एलिमेंट फाइंड कीजिए जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है. सी, लेफ्ट हैंड साइड Mn oxidation number is +7, right hand side +2. See, here there's the change. Left hand side, the oxidation number of Br is -1, right hand side 0. Here there's the change. ठीक है, so we will find the elements whose oxidation state is being changed or oxidation number is being changed. Thereafter आपने क्या करना है, we have to make the two half reaction. This is our fourth step. ठीक है, तो we'll make the two half reaction. दो हाफ रिएक्शन बनाएंगे, एक ऑक्सीडेशन की और एक रिडक्शन की. सी, यहाँ Mn +7 से +2 चेंज हो रहा है, यानी इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ Br -1 से 0 हो रहा है, यानी इसका यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. नाउ
हम इन दोनों की दो हाफ रिएक्शन बनाएंगे। तो हियर द टू हाफ reactions are, तो फर्स्ट है इट इज Br minus and it changes to Br2। see, जब आप हाफ रिएक्शन बनाएंगे तो वहां पर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस हुआ वो भी इंक्लूड करेंगे। मीन्स we'll make the two half reaction, and in that half reaction we'll mention that how many electrons are gained or lost, as in this case. See, right hand side there are 2Br, left hand side we'll take the 2Br minus, and see Br state changes from -1 to 0. It means हर Br आयन ब्रोमाइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वन Br इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन एज देयर आर टू Br एटम। तो इसका मतलब दो ब्रोमाइड आयन लेने पड़ेंगे और दो ब्रोमाइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इट मींस हियर it is losing two electrons and we are getting the bromine. This will be your equation number 1. Second equation, it is MnO4 minus and this changes to Mn2 plus। ठीक है, यहां देखो on both the side the number of Mn atom are same। ठीक है, यहां state is और oxidation number is +7, +7 से +2 चेंज हो गया। It means in terms of electron, it means it is gaining 5 electrons। Okay, so this is your next step, we will make the two half reaction। और अब इन दो हाफ रिएक्शन में ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट हैं we have to balance this one। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे तो इनको बैलेंस करना है। So in order to balance it, we'll multiply the equation 1, see here, to balance number of electrons which are gained or lost. Just multiply equation 1 by 5 and equation 2 by 2। see, यहां पर इसने 2 टर्म लूज किए, यहां 5 टर्म गेन हुए। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, इसको 5 से तो ये भी 10 हो जाएगा। वी हैव टू बैलेंस दिस नंबर ऑफ टर्म गेन एंड लॉस्ट। ओके, तो हियर व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय द 5, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10 Br minus 10 electrons and this gives 5 Br2। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 3। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ MnO4 minus plus 10 electrons and you will get twice of Mn2 plus। this will be equation number 4। ठीक है, आपने क्या किया दो हाफ रिएक्शन बनाई, उसमें अलोंग विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट वो मेंशन किए। उसके बाद आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस को बैलेंस किया। ठीक है, और उसके बाद इन दो हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है। फिर जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस को बैलेंस कर लेंगे उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है। मींस हियर एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। व्हेन वी ऐड दिस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। नाउ राइट डाउन द रिजल्टेंट इक्वेशन। तो रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस और प्लस 10 Br minus and this gives twice of
Mn2 plus 5Br2. दिस इज रिजल्टेंट इक्वेशन। जब आपको दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर लेंगे आपको रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां पर आपने अदर एटम्स बैलेंस करने हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के। तो वैसे यहां तक मैं मोस्टली सारे अदर एटम्स बैलेंस्ड होते हैं। देखो राइट हैंड साइड 2Mn, लेफ्ट हैंड साइड 2Mn, राइट हैंड साइड 10Br, लेफ्ट हैंड साइड 10Br, राइट हैंड साइड 10Br। ओके, अब यहां पर हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने होते हैं। ध्यान रहे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना ये डिपेंड करता है मीडियम पर। अगर आप देखो यहां पर रिएक्शन को दो मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है ये आइदर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस किए जाते हैं बाय एडिंग H+ एंड वाटर, और जबकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस किए जाते हैं बाय एडिंग OH- एंड वाटर। देखो एसिडिक मीडियम में अगर आपको हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने हैं तो H+ से बैलेंस किए जाते हैं और ऑक्सीजन एटम बैलेंस किए जाते हैं कैसे, वाटर ऐड करके। जबकि बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोजन एटम हैं वो बैलेंस किए जाते हैं बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल, और जो ऑक्सीजन एटम्स हैं दे आर बैलेंस्ड बाय एडिंग OH-। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। मींस वी विल बैलेंस दिस इक्वेशन बाय एडिंग H+ एंड वाटर। इज इट क्लियर? अब देखो नाउ thereafter we'll write here in acidic medium to balance number of oxygen and hydrogen atoms. ठीक है, after that leave two lines and then again we'll write this combined equation. It is twice of MnO4 minus plus 10 Br minus, leave some space here, और यह हो जाएगा twice of Mn2 plus plus 5Br2। ठीक है, अब हमें कितने H+ कितने वाटर ऐसे ऐड करना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो इक्वेशन में दोनों तरफ चार्ज देखो और उस चार्ज को बैलेंस करो। जैसा कि देखो यहां पर क्या है, राइट हैंड साइड अगर हम एरो के देखें तो टोटल चार्ज आयनिक इक्वेशन है, नेट चार्ज तो होगा तो वो देख लेते हैं। यहां कितना चार्ज है 1 Mn इज हैविंग 2+, तो 2 Mn है, टोटल चार्ज इज 4+। ओके, अब हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड सॉरी चार्ज देख लेंगे। यहां देखो ईच Br इज हैविंग 1 नेगेटिव, देयर आर 10 Br, 10- ये हो गया, और यहां पर MnO4 इज हैविंग 1 माइनस, देयर आर 2, तो 2- ये हो गया। टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड आ गया 12-, और राइट हैंड साइड जो चार्ज है वो है 4+। नाउ बाय एडिंग H+ आयन हमको दोनों साइड चार्ज बराबर रखना है। तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका है अगर मैं इस साइड 16+ जोड़ दूं, 16H+ जोड़ दूं, तो अब यहां नेट चार्ज 12+ था, 16+ आपने जोड़ दिया, टोटल 4+ हो गया। दोनों तरफ चार्ज अब इक्वल हो गया। ठीक है, बस आप चार्ज बैलेंस कीजिए। तो इट मींस इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ द साइड हमने यहां 16H+ जोड़ दिए। ओके, और अब यहां देख लीजिए यहां 16 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। एज इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर, तो ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर 16 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड मेरे को 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे।
Now view the reaction. Reaction will be balanced. See, left hand side 4 2 is 8, 8 oxygen. Right hand side 8 oxygen, 16 hydrogen, 16 hydrogen, 10 bromine, 10 bromine, 2 Mn, 2 Mn. Reaction is balanced. So write down here the space left that in acidic medium, to balance number of oxygen and hydrogen atoms, add 16H plus on left hand side and 8 H2O on right hand side, and this will be your balanced equation. Is it clear? So सिंपल सा तरीका है, ठीक है. फर्स्टली आपने क्या करना है, आयनिक इक्वेशन लिखनी है. सेकंड, आपने हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख देनी है. तब आपने फाइंड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. देन आप दो हाफ रिएक्शन बना देंगे, एक ऑक्सीडेशन की और एक रिडक्शन की, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ टर्न गेन्ड एंड लॉस्ट. और उसके बाद आप इन नंबर ऑफ टर्न गेन्ड एंड लॉस्ट को बैलेंस कर देंगे. उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे, आपको नेट रिएक्शन मिल जाएगी. और यहां तक आते आते मोस्टली ऑल द एटम्स विल बी बैलेंस्ड. इन केस नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है. फिर उसके बाद आपको लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, ठीक है. अगर आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस बाय एडिंग H प्लस एंड वाटर. और अगर आप बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो तो हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस बाय एडिंग वाटर एंड ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस बाय एडिंग द OH माइनस. चलिए एक इक्वेशन और लेते हैं इसी में. ये हमने एसिडिक मीडियम में किया है, अब की बात बेसिक मीडियम में देखते हैं. ओके, suppose our equation is, it is Zn plus NO3 minus, and this gives Zn2 plus NH4 plus. This is our ionic equation. आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, वी हैव रिटन द आयनिक इक्वेशन. नाउ सेकंड स्टेप, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. जिंक हियर 0, यहां नाइट्रोजन का इट विल बी +5, हियर Zn +2, नाइट्रोजन इट विल बी -3. तो ये मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट. ओके, हाइड्रोजन का यूजुअली +1 ही होता है तो मेंशन नहीं किया यहां पर, ऑक्सीजन की -2 ही होती है. देन select the two elements whose states get changed. देखो, this Zn changes to Zn2 plus और nitrogen changes from +5 to -3. Means यहां पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया as पॉजिटिव स्टेट इज डिक्रीजिंग और जिंक का यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया. ओके, तो देन आफ्टर दैट क्या करना है, हमें दो हाफ रिएक्शन प्रिपेयर करनी है. तो one half reaction is so the two half reactions are, तो लिख दीजिए, one is this Zn and turns to Zn2 plus along with the number of turn gained and lost. तो यहां पर it is losing the 2 electron. Okay, this is your equation number 1. equation second बनाइए. ये हो गया NO3 minus and it changes to NH4 प्लस. यहां पर -3 है, यहां ये +5 है, +5 टू एज सी. एक चीज यहां पर ध्यान रख लेना, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट की जिसकी स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है वो सेम होने चाहिए, और अगर नहीं है तो कर देने हैं वो. इसी यहीं पर यहां देखो +5 से -3, यानी +5 से -3 करने के लिए उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे. तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 0 हो जाएगा, 3 और गेन करेगा तो फिर -3 होगा. तो इसका मतलब टोटल यहां पर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है. तो हमने ये दूसरी हाफ रिएक्शन बना दी. अब क्या करना है, तो हाफ रिएक्शन बना दी. देन वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस्ट. तो यहां पर राइट, टू बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are gained or
लॉस्ट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सिंपल से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। अगर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुए। इज इट क्लियर? तो देन यू विल गेट द इक्वेशन, इट इज 4Zn plus minus 8 electrons, and this gives 4Zn2 plus. This will become your equation number 3. Is it clear? अब क्या करना है, ये वाली ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। अब नंबर ऑफ टर्न गेन्ड एंड लॉस दोनों बैलेंस है। तो आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ टर्न गेन्ड एंड लॉस, देन add both the half reaction। तो दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए। कब? आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ टर्न गेन्ड और लॉस्ट। इन दोनों को बैलेंस ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ टर्न गेन लॉस्ट एज दे आर इक्वल कैंसिल हो जाएंगे। देन राइट डाउन द कंबाइंड इक्वेशन। द कंबाइंड इक्वेशन विल बी 4Zn and plus here it is NO3 minus, and this gives 4Zn2 plus NH4 plus. This will be equation, combined equation number 4। देखिए, जब तक आपने कंबाइन नहीं किया है या नंबर ऑफ टर्न गेन्ड और लॉस बैलेंस नहीं किए हैं, तब तक आपको एलिमेंट के ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देनी चाहिए। लेकिन जब कंबाइंड हो जाती है तो उसके बाद इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एंड नाउ अब ये जो कंबाइंड इक्वेशन बनी, इसमें देखिए क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम्स बैलेंस हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ 4Zn राइट हैंड साइड, 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी बैलेंस लेटर। सी, एज वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। ओके, we will balance this equation in basic medium. So now right in basic medium, to balance number of oxygen and hydrogen atoms. Okay, after that leave 1 or 2 lines, then again write this combined equation 4Zn plus NO3 minus, this gives here 4Zn2 plus NH4 plus। सी, अगर आपके क्वेश्चन में इक्वेशन में यहाँ उनकी स्टेट भी मेंशन है तो आपको भी स्टेट मेंशन करके चलना चाहिए। जैसे कि माना NH4 के बाद एक्वस लिखा है तो आपको वो मेंशन करना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब ऐसा चलने दीजिए। लिखा है तो आपको वो स्टेट उसकी मेंशन करनी चाहिए। ओके, एज हियर जिंक विल बी सॉलिड, तो ये ऐसे ऐसे लिखा होगा, तो ये लिख देनी चाहिए। ठीक है, वो यहीं से हर स्टेप में वो लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हमें बेसिक मीडियम में करना है। ठीक है, अब देखिए यहां चार्ज बैलेंस कर दीजिए। चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड टोटल चार्ज है 1 माइनस। ओके, और राइट हैंड साइड जो हमारे पास टोटल चार्ज है, देखो 1 प्लस तो NH4 के पास है और 8 Zn के पास 2 प्लस है तो 4 है, तो 8 प्लस जिंक के पास है, टोटल हो गया 9 प्लस। अब देखो राइट हैंड साइड चार्ज है 9 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड चार्ज है 1 माइनस, एंड वी हैव टू बैलेंस द चार्ज। ठीक है, और बेसिक मीडियम में देखो ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड बाय एडिंग OH माइनस एंड हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस्ड बाय द एडिंग वाटर। तो अब यानी हमें चार्ज वाली स्पीशीज एक ही है हमारे पास, OH माइनस। अब हमें OH माइनस ऐड करके दोनों साइड चार्ज बैलेंस करना है। तो इसका मतलब यहां हमें इधर तो -1 है ही, इधर पॉजिटिव में है, इधर भी -1 लाना है। तो इसका मतलब हमें यहां 10 नेगेटिव जोड़ देना चाहिए ताकि रिजल्टेंट 1 माइनस हो जाए। तो हियर in order to balance the charge on both the side, we will add here 10 OH minus. Now see, the charge is balanced on either side. Okay, thereafter balance the
other atoms. ठीक है, here see here we must leave some space here. हाँ, अब देखिए यहाँ कितनी ऑक्सीजन हो गई 10, यहाँ पर कितनी है 3, यानी कि 7 ऑक्सीजन मोर वी नीड. तो we will add 7 H2O on left hand side. Now use the reaction. Left hand side 7 to the 14 हाइड्रोजन, यहाँ 10 और 4 plus 10 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 10 और 7 plus 3 10. तो reaction is balanced. It means we may write that in basic medium to balance number of oxygen and hydrogen atoms, add 7 H2O on left hand side and 10 OH minus on right hand side. Is it clear? ठीक है, तो इस तरह से आप रिडॉक्स रिएक्शंस को और या रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है उनको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं. ओके.